Dear students, welcome back. Uh, in the next philosopher of Unit 5 is Sri Aurobindo Ghosh. India is the land of sages, saints, philosophers, and reformers since ancient times. One among them in the modern era was Sri Aurobindo. He was an Indian nationalist, philosopher, yogi, guru, and poet. He joined the Indian movement for independence from British rule and for a while became one of its influential leaders. He is regarded as one of the most gifted philosophers. He was a nationalist, revolutionary, turned spiritualist, educationalist, and moralist. For introducing his vision on human progress and spiritual evolution. He was a great champion of education in the evolution of man or mind. He strongly believed that life has a divine purpose and one of the most important tasks of education is to lead the student to discover for himself the aim of life and the specific role that he himself has to play in it. His concept of education is an instrument for the real working of the spirit in the mind and body of the individual and the nation. He stresses that the main aid of a teacher is his conscience. This conscience has four stages: consciousness, mind, intelligence, and knowledge. Education should develop all these stages as much as possible. As an idealist, Aurobindo's philosophy of education is based on spiritual pinnacle, practice of yoga and brahmacharya. She held the view that any education involving all the three factors will definitely develop man to the fullest extent. According to him, a man does not possess a physical spirit only. It is endowed with higher mental, godly intelligence and a very high spiritual element also. And he has a capacity to recognize and realize God. To realize this great aim, he has to develop his powers of thinking, concentration, and deep meditation, together with other divine faculties, to the fullest. According to him, real education is that which provides a free and creative environment to the child and by developing his interest, creativity, mental, moral and aesthetic sense, finally leads to the development of his spiritual powers. Sri Aurobindo himself writes that alone would be true and living education which helps to bring out to full advantage all that is in individual man. Aurobindo Ghosh was a great educationist and philosopher. He had expressed his educational thought in his book National System of Education and On Education. Agents of Upanishad and Vedanta were the basis of philosophy of his life. As an idealist, Aurobindo
philosophy of education is based on spiritual finance, practice of yoga and brahmacharya. He considered that if any individual achieves all three aspects of education, he or she definitely develops himself or herself to fullest extent. For Aurobindo, real education is that which provides free and creative environment to the child, and by developing his/her interest, creativity, mental, moral, aesthetic sense, finally leads to the development of his/her spiritual power. Educational thoughts of Aurobindo. According to Aurobindo, the aim of education should be physical and mental development of the child with purity. Development of senses, development of morality, development of conscience, and spiritual development. His basic thought of education can be pointed out along the following lines. Medium of instruction should be in mother tongue. Child should be kept at the center in all learning activities. Education should be provided as per the mental abilities and psychology of the child. Achieving spiritualism should be the goal of education. Training for the senses should be imparted and consciousness should be developed through education. The basic foundation of education should be brahmacharya. Education should develop all the faculties of child to make him or her a complete human being. श्री औरोबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वे भारत की एक महान विभूति थे। एमपी पंडित, जिन्होंने उनके जीवन चरित्र पर श्री औरोबिंदो नामक महत्वपूर्ण पुस्तक 1983 में लिखी थी, जिसे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया था। ने इस प्रश्न श्री औरोबिंदो कौन है का यहाँ उत्तर दिया था। इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, क्योंकि श्री औरोबिंदो एक महान विद्वान, कवि, क्रांतिकारी, चिंतक, संत, दार्शनिक, योगी और एक युग के निर्माता है। इन सबसे ऊपर उठकर एक ऋषि है, जो कि आगे की ओर देखते हैं। वे क्रांतिदर्शी व जिन्होंने देवत्व के साथ अपनी आत्मीयता को प्राप्त कर ली है, जो कि ईश्वर के सृजनात्मक धनुष को हाथ में धारण करते हैं। उनके नाम के आगे सी शब्द का अर्थ है शान, देवत्व की शान। श्री अरविंद पर अपने पीएचडी स्तर के शोध अध्ययन में विख्यात भारतीय सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह ने श्री अरविंद को एक महान योगी और अद्भुत प्रतिभा का भारतीय महायोगी बताया है, जिन जैसा अद्वितीय और बहुआयामी सृजनात्मक दार्शनिक कई युगों के बाद भारत में उत्पन्न हुआ। आप यह तो जानते होंगे कि डॉक्टर कर्ण सिंह भारत के एक अत्यंत प्रसिद्ध दार्शनिक, चिंतक, राजनीतिक और महान विद्वान और भारत की लोकसभा में बहुत विद्वान सांसद है, जिन्होंने महायोगी श्री अरविंदो पर न केवल स्थायी महत्व का शोध ग्रंथ दिल्ली विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग में लिखा था, अपितु अपने जीवन में श्री अरविंद के अनुपम विचारों के मूल्यों, आदर्शों को आत्मसात किया। वे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के चेयरमैन। श्री अरविंद एक मौलिक और क्रियात्मक दार्शनिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय दशा का गंभीर अध्ययन और मंथन किया था और उन्होंने एक उच्च कोटि का दार्शनिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण शिक्षा शास्त्र को संसार के सामने प्रस्तुत किया। श्री अरविंद घोष के पिता केवल 6 वर्ष की आयु में ही इंग्लैंड भेज दिया था।
जिसमें वे कृत्रिम अंग्रेज बन गए। श्री अरविंद घोष ने वहां पर शिक्षा प्राप्त करते हुए महान लेखकों एवं कवियों की मौलिक रचनाओं का अध्ययन करने के लिए ग्रीक तथा लैटिन भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं किया, अपितु फ्रेंच, जर्मन तथा इटालियन आदि अनेक यूरोपियन भाषाओं को भी सीखा। 14 वर्ष तक इनकी आयु में उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए विशुद्ध पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की। सन 1890 ईस्वी में श्री अरविंद भारतीय सिविल सर्विस ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, परंतु घुड़सवारी में सम्मिलित न होने के कारण उन्होंने अपने आप को अनुपयुक्त पाया और सन 1893 ईस्वी में भारत लौट आए। भारत आने पर श्री अरविंद ने 13 वर्ष तक बड़ौदा के गायकवाड़ के यहाँ नौकरी की। इसी बीच उन्होंने संस्कृत तथा अन्य भाषाओं को सीखकर अपने भावी जीवन की तैयारी की। सन 1905 ईस्वी में बंग भंग विच्छेद के पश्चात श्री अरविंद ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े। शनि शनि उन्होंने अपने वंदे मातरम, कर्मयोगिन तथा धर्म आदि समाचार पत्रों एवं प्रभावशाली भाषणों के द्वारा देश में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया तथा भारत का लक्ष्य स्वराज घोषित किया। राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए, परंतु शीघ्र ही छोड़ दिए गए। एक दिन अलीपुर जेल में उन्होंने स्वप्न में ईश्वरीय आत्मा का दर्शन किया अतः जेल से छूटते ही उन्होंने सन 1915 ईस्वी से अपनी राजनीतिक गतिविधियां छोड़ दी और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए फ्रेंच उपनिवेश पौंडीचेरी में चले गए, जहां एक आश्रम बनाया। यह आश्रम अब भी श्री अरविंद आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। श्री अरविंद ने अपना शेष जीवन इसी आश्रम में रहते हुए आध्यात्मिक साधना एवं योग में व्यतीत किया। इस प्रकार श्री अरविंद राजनीतिक कार्यकर्ता के एक दार्शनिक बन गए और दार्शनिक के रूप में उन्होंने जनता के सामने शिक्षा, धर्म, योग तथा ब्रह्मचर्य आदि विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सन 1950 में श्री अरविंद का स्वर्गवास हो गया। श्री अरविंदो का जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, अरविंदो। श्री अरविंद आदर्शवादी थे। उनके दर्शन का आधार उपनिषद का वेदांत। वे जीवन में आध्यात्मिक साधना, योग तथा ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देते हुए विकास के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्होंने बताया कि विकास का लक्ष्य केवल एक ही है और वह है संसार में व्यापक दिव्य शक्ति अथवा पूर्ण एवं अखंड चेतना को प्राप्त करना। श्री अरविंद का विश्वास था कि विकास का यह क्रम निरंतर चलता ही रहता है। इस विकास क्रम की एक ऐसी स्थिति भी आती है जब मानव अति मानसिक स्तर को प्राप्त करके स्वयं अति मानव बन जाता है। इस स्तर पर पहुंचकर मानव ज्ञान से अधिक ज्ञान तथा प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बढ़ता है। इससे उस आश्चर्यजनक शांति एवं वास्तविक सुख का आनंद प्राप्त होते हुए सृष्टि के रहस्य तथा व्याप्त सत्यता का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ श्री अरविंदो। श्री अरविंद एक महान दार्शनिक के साथ साथ उच्च कोटि के
शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने मानव जाति को सर्वोच्च आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाया। इस दृष्टि से उन्हें मानव के सच्चे धैर्यदाता की संज्ञा दी जाती। श्री अरविंद ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को अपने साप्ताहिक कर्म योगिन में प्रकाशित किया तथा बताया कि शिक्षक का प्रमुख उपकरण अंतःकरण होता है, इंट्यूशन। इस अंतःकरण के 4 पटल अथवा स्तर होते हैं: चित्त, मानस, बुद्धि तथा ज्ञान। शिक्षा को बालक के चारों स्तरों का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। आदर्शवादी होने के नाते श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य तथा योग पर आधारित है। उनका विश्वास था कि जिस शिक्षा में उक्त तीनों तत्व सम्मिलित होंगे उससे मानव का पूर्ण विकास होना निश्चित है। उनके अनुसार मानव में केवल शारीरिक आत्मा ही नहीं होती अपितु उसका बौद्धिक, मानसिक, ब्रह्म संबंधी, विशेष मस्तिष्क संबंधी तथा उच्च आध्यात्मिक अस्तित्व भी होता है। यही नहीं, उसमें ईश्वर को पहचानने की शक्ति भी होती है, पर ईश्वर को पहचानने के लिए उसे स्वार्थपरता से ऊपर उठना चाहिए, जो सरल कार्य नहीं है। पर ईश्वर को पहचानने के लिए उसे स्वार्थपरता से ऊपर उठना चाहिए, जो कि सरल कार्य नहीं है। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसकी चिंतन तथा दैवी शक्तियों को विकसित करना परम आवश्यक है। श्री अरविंद के अनुसार सच्ची शिक्षा वहां शिक्षा है जो बालक के सामने स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करे तथा उसकी रुचियों के अनुसार उसकी क्रियात्मक, बौद्धिक, नैतिक तथा सौंदर्यात्मक शक्तियों को विकसित करके उसके आध्यात्मिक विकास में सहायता प्रदान करे। उन्होंने स्वयं लिखा है, सच्ची और वास्तविक शिक्षा वहां है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को विकसित करके उसे सफल बनाने में सहायता प्रदान करती है। That alone would be true and living education which helps to bring out to full advantage all that is in individual man. दर्शन और शिक्षा पर श्री अरविंद के प्रमुख विचार के रूप में यहां कहा जा सकता है कि उनके दर्शन और शिक्षा के दर्शन शास्त्र संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण विचारों की देन को हम इस प्रकार देखते हैं कि वे भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के प्रबल समर्थक थे। वे भारतवासियों को मंदिरों और ज्ञान की संस्थाओं के संकीर्णता से बाहर निकालकर उन्हें जीवन में ही लाना चाहता है। He wants to lead his countrymen out of the temples and out of the narrowness of the schools of learning into life itself. उनके अनुसार हमारे लिए भूतकाल को तो अवश्य ही पवित्र सैक्रेड होना चाहिए। The past must be sacred to us out, the future is still more sacred. लेकिन भविष्य तो और भी अधिक पवित्र होना चाहिए। श्री अरविंद की मान्यता थी कि बहुत लंबे समय तक मनुष्य वास्तव में पशुता की प्रवृत्ति से ग्रस्त रहे थे। इसलिए भूतकाल के मानव प्रभुता प्रधान थी। पिछले 2 शताब्दियों से मनुष्य यह दावा करने लगे हैं कि वे मनुष्य हैं। उन्होंने बहुत अधिक प्रगति कर ली है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वे बहुत अधिक सीमा तक या प्रतिशत में सही प्रकार के
मानव बने हैं उनकी व्यक्तियों में अभी तक बहुत अधिक सीमा तक या प्रतिशत तक पशुता देखने में आती है, इसलिए उनको अभी भी कहना उचित होगा। आज के मानव में हिंसा, द्वेष, असहयोग, अमूल्यों, डिवैल्यूज, अशांति, अनैतिकता, आध्यात्मिकता, क्रोध, यौनाचार, लालच आदि बहुत सी गंभीर दुखद बातें देखने में आती है और उनका प्रमाण है कि हमारे दैनिक समाचार पत्र आपसी झगड़ों, हिंसा, क्रूरता, शोषण, अनाचार तथा राक्षसी व्यवहार की घटनाओं के समाचारों से भरे होते हैं। इनसे स्पष्ट है कि अभी तक मनुष्य चाहे वह अपने आप को कितना ही बढ़ा चढ़ाकर दावा करे और डींग मारे कि वहां अब मनुष्य बन गया है, वास्तव में यहाँ एक खोखला दावा है। उसे तो अभी सही अर्थ में मानव बनना बाकी है। मानव जाति को वास्तव में भविष्य में अधिमानव सुपरमैन बनना होगा, जिसमें देवत्व के सारे गुण, आदर्श, आचरण, व्यवहार, संस्थाएं, तौर तरीके होते हैं। इस प्रकार श्री अरविंदो ने मानवता के विकास क्रम में 3 महत्वपूर्ण चरणों का विवरण दिया है। पहला, मानव वास्तव में हजारों वर्षों तक पशु अधिक मानव कम रहा है। अभी तक वह पशु अधिक व मानव कम बना हुआ है, यद्यपि वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर मानव होने का दावा करता है और यह कहता है कि आधुनिक युग के उसके प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, ज्ञान संबंधी प्रगति, शिक्षा संबंधी प्रगति, सांस्कृतिक प्रगति में कई मील के पत्थर आ चुके हैं। निकट भविष्य में यह चिंतनीय और दुखद अवस्था कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानव की नियति, डेस्टिनी तो सुपरमैन बनने की है। शिक्षा को इस योग्य बनना और बनाना होगा कि वहां न केवल आज के मनुष्य के आदर्श मानव बनाए जाने, लेकिन उसका लक्ष्य तो आधुनिक मानव को निकट भविष्य में बनाना ही होगा। इस कार्य के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों को प्राचीन भारत के गौरवशाली आध्यात्मिक दर्शनों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और उनमें निहित आदर्शवाद को सच्चाई से अपनाना होगा। उनको यह समझना होगा कि व्यक्ति का अंतःकरण ही शिक्षा और विकास का मुख्य उपकरण है और उसके 4 स्तर है: चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान। शिक्षा का यह कार्य होना चाहिए कि वहां प्रत्येक विद्यार्थी के अंतःकरण के ये 4 स्तरों को विकसित करें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा एकीकृत शिक्षा होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा ज्ञानेंद्रिया आदि का प्रशिक्षण दिया जाए। उनमें साहित्य, संगीत, दर्शन और विभिन्न ऐच्छिक विषयों को पढ़ाने का प्रावधान हो। उसमें विस्तृत धार्मिक, प्रबुद्ध, आध्यात्मिक शिक्षा तथा ब्रह्मचर्य, शारीरिक बुद्धि, तर्क शक्ति और नैतिकता का विकास किया जाए। उनमें प्रेम, सहानुभूति, स्वयं अनुभव करने और स्वयं प्रयास करने और प्रयास करके सीखने का प्रमुख प्रयास होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य या शिक्षा की धारणा, शिक्षा का अर्थ। श्री अरविंद भारत की प्रचलित शिक्षा के विरोधी थे। वे कहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भारतीय शिक्षा रूप की रूपरेखा में परिवर्तन तो अवश्य आ गया है, परंतु वहां अब भी बालकों के मस्तिष्क, आत्मा तथा चरित्र एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है। उनके अनुसार हमारी शिक्षा को आधुनिक जीवन की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में श्री अरविंद ऐसी शिक्षण पद्धति के पक्ष में थे
जो बालकों को कर्मठ नागरिक बनाए तथा आधुनिक युग की आवश्यकताओं को पूरा कराने में समर्थ हो। वे स्वयं लिखते हैं, सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, अपितु इसको मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवित उत्कर्ष करना चाहिए। Education to be true must not be a machine-made fabric, but true building or living evolution of the powers of the mind and spirit of human being. वे इस प्रकार के अनुपम योग और प्राचीन भारतीय परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने पर बल देते थे। उनके अनुसार शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान संस्कृति और चरित्र का उत्कर्ष करती है। Education is the building of the power of the human mind and spirit. It is the evoking of knowledge, culture and character. श्री अरबिंदो उपनिषद के दर्शन और मानसिक प्रशिक्षण, नैतिकता, विशेष क्षमता, आध्यात्मिक विकास और अंतःकरण का विकास करने पर बल देते थे। उनके अनुसार बालक शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्रत्येक बालक की अपनी शक्तियां अलग होती। इनके अतिरिक्त वे बालकों को सर्वांगीण शिक्षा देने के लिए पश्चिम के वैज्ञानिक और प्रगतिशील विचारों को भी महत्व देते हैं। इस प्रकार वे भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी ज्ञान में संतुलित करते हुए बालक को शिक्षा देने में आह्वान करते हैं। पांडिचेरी में जहां पर श्री औरबिंदो विश्वविद्यालय केंद्र और श्री औरबिंदो पाठशाला है और दिल्ली में भी श्री औरबिंदो स्कूल्स है, वहां श्री औरबिंदो मार्ग नई दिल्ली उनके आदर्शों और शैक्षणिक सुझावों के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जाती है। श्री औरबिंदो ने अपने दो महत्वपूर्ण पुस्तकों द नेशन एज सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन में अपनी अद्वितीय शिक्षा दर्शन का वर्णन किया। वे प्राचीन भारतीय शिक्षा दर्शन को मनोवैज्ञानिक आधारों पर आधारित पाते हैं। उनके अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है। विद्यार्थी का शारीरिक विकास और उसकी शुद्धि करना, विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण प्रशिक्षण करना। उनका विकास तभी संभव है जबकि उसका मन, हृदय व आत्मा शुद्ध हो। विद्यार्थी का मानसिक विकास करना अर्थात उसकी चिंतन, तर्क शक्ति का विकास करना। विद्यार्थी का नैतिक विकास करना, उसके लिए उसके संवेगों, संस्कारों या आदतों, स्वभाव, प्रकृति को विकसित करना होगा। शिक्षक के उत्तम आदर्शों को देखकर ही उनका अनुकरण करने से विद्यार्थी नैतिक बन सकता है। विद्यार्थी का आध्यात्मिक विकास करना। श्री औरबिंद के अनुसार शिक्षक को बालकों का सहायक और पथ प्रदर्शक बनना चाहिए, न कि निर्देशक, स्वामी अथवा ज्ञान थोपने वाला। उसको बालक की सीखने में प्रेरणा लेकर भी सहायता करना चाहिए। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत श्री अरविंद के अनुसार कुछ निम्नलिखित है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू अरविंद। शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। शिक्षा बालक प्रधान होनी चाहिए। शिक्षा बालक की मनोवृत्तियों तथा मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा को बालक में छिपी हुई शक्तियों का विकास करना चाहिए। शिक्षा को बालक की शारीरिक शुद्धि करनी चाहिए। शिक्षा को चेतना का विकास करना चाहिए। शिक्षा को मानव के अंतःकरण का विकास करना चाहिए। शिक्षा को
ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। शिक्षा का आधार ब्रह्मचारी होना चाहिए। शिक्षा के विषय के शिक्षा के विषय रोचक होनी चाहिए। शिक्षा को बालक की समस्त शक्तियों का विकास करके पूर्ण मानव बनाना चाहिए, यानी कंप्लीट मैन बनाना चाहिए। शिक्षा में धार्मिक पुट अवश्य होना चाहिए, वरन भ्रष्टाचार फैलेगा। बेसिक प्रिंसिपल, education should be imported and through the medium of mother tongue. Education should be child-centered. Education should be according to the mental aptitude and psychological need of the child. Education should develop full latent powers of the child. Education should achieve the physical purification of child. Education should develop consciousness. Education should train the sense of child. Education should develop the soul substance of an individual. Brahmacharya should be the basic foundation of education. Subjects of education should be interesting. Education should develop all the faculties of child to make him a complete man. There should be religious thing in education, otherwise it will be spread corruption. Now, aims of education, शिक्षा के उद्देश्य। श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार। पहला उद्देश्य शारीरिक विकास और शुद्धि, फिजिकल डेवलपमेंट एंड प्योरिटी। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक के शरीर का पूर्ण एवं शुद्ध विकास करना। उनका विश्वास था शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीरम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर के माध्यम से ही धर्म का ही साधना होती। अतः उन्होंने बालक के शारीरिक विकास पर ही बल नहीं दिया, अपितु इसके अंतर्गत शारीरिक शुद्धि को भी सम्मिलित किया और बताया कि शरीर के उचित विकास एवं उसकी शुद्धि के बिना मानव का आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। इस दृष्टि से बालक के शरीर का पूर्ण विकास एवं उसकी शुद्धि आध्यात्मिक विकास के लिए परम आवश्यक है। दूसरा उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक की दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्पर्श तथा स्वाद आदि सभी ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण प्रशिक्षण है। उनका विश्वास था कि उक्त ज्ञानेंद्रियों का स्वस्थ विकास उसी समय हो सकता है जब स्नायु, नर्व, चित्त तथा मानस शुद्ध हो। अतः शिक्षा और साधना द्वारा सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध कर लेना परम आवश्यक है। तीसरा उद्देश्य मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालक का मानसिक विकास है। मानसिक विकास से उनका तात्पर्य स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना तथा निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों से था। अतः शिक्षा को उक्त सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। चौथा उद्देश्य नैतिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी। श्री अरविंद ने बालक में नैतिकता के विकास को भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना। उन्होंने बताया कि बिना नैतिक तथा संवेगात्मक पूर्णता के मानसिक शिक्षा मानव प्रगति के लिए हानिकारक है।
अतः श्री अरविंद ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि मानव के नैतिक विकास के लिए सर्वप्रथम संवेग तथा संस्कार अथवा आदतें और स्वभाव अथवा प्रकृति तीनों बातें मुख्य है। वे उक्त तीनों बातों को शिक्षा के द्वारा शुद्ध एवं सुंदर बनाकर मानव के हृदय को प्रशिक्षित करना चाहते थे, जिसे वह समस्त प्राणियों के साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए एक उत्तम नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। श्री अरविंद ने बताया कि शिक्षक के आदर्शों को इतना उत्तम होना चाहिए कि बालक उनका हृदय से अनुकरण करके जीवन की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करता रहे। अगला उद्देश्य अंतःकरण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्साइंस। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य है अंतःकरण का विकास करना। उनके अनुसार अंतःकरण के 4 पटल अथवा स्तर हैं: चित्त, मानस, बुद्धि तथा ज्ञान। शिक्षा को उक्त 4 स्तरों का विकास करना चाहिए। 3 स्तरों का विकास ही अंतःकरण का विकास है। अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। श्री अरविंद ने बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कुछ दैवीय अंश होता है। शिक्षा के द्वारा इस दैवीय अंश को खोज द्वारा विकसित करके उसे आध्यात्मिक पूर्णता की ओर अग्रसर किया जा सकता है। अतः उन्हीं के शब्दों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना, जो उसमें सर्वोत्तम है, उसे व्यक्त करना तथा उसे श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्ण बनाना। द चीफ एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू हेल्प द growing soul to draw out that in itself which is best and make it perfect for the noble you. Aims of education: physical development and purity. This is the first aim. To achieve complete physical and purity development of child, according to him, it is the body which performs all religious obligations. He not only emphasized physical development but purity also. Without it, spiritual development is not possible. Second one, development of senses. To train all the senses, namely hearing, speaking, listening, touching, smelling, and tasting. According to him, these senses can be fully trained when nerve, chitta, heart, and manas mind are pure. So, through education, purity of senses is to be achieved before any development is possible. Third aim is mental development. To achieve mental development of the child, this mental development means the development of all mental faculties, namely memory, thinking, reasoning, imagination, and discrimination. Fourth aim is development of morality. It is essential to develop the child morally. He has emphasized that without moral and emotional development, mental development becomes harmful to human. Progress for the moral development of a child, emotions
impressions or habits and nature are the three essential factors. According to him, heart of child should be developed to show extreme love, sympathy and consideration for all living beings. This is real moral development. Thus, the ideals of teacher should be so high that the child is able to reach higher and higher stages of development. Next one is development of conscience. To develop the conscience, according to him, it has four levels, namely chitta, manas, intelligence and knowledge. A teacher should develop all these four levels. This will promote the development of conscience. Next is spiritual development. To promote spiritual development, according to him, every human being has some element of divinity in him. In his own words, the chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself, which is best and make it perfect for a noble use. Now, curriculum and methods of teaching. The subjects included in the curriculum should be according to the interest of the child. According to him, curriculum should be address the physical, mental and spiritual development of the child. He suggested that curriculum should be interesting and it should motivate the child to study. Curriculum suggested by Aurobindo for different stages of education are as follows. Curriculum as per Sri Aurobindo. For primary stage, subjects should be mother tongue, English, French, social studies and fine arts. For secondary stage, mother tongue, English, French, mathematics, social science, physics, chemistry, biology, botany, health science, fine art and geology. For university stage, Indian and Western philosophy, psychology, sociology, history, English literature, French literature, international relationship, physics and chemistry. For the vocational education stage, acting, dance, Indian and European music, vocal art, education, painting, photography, sewing, typing and shorthand. Teaching method should be based on demonstrating activities and in the interest of the child. Aurobindo suggested learning through self-study, self-experience and introspection method. He also advocated oral method of teaching which helps in sermon, logic, expression, description, etc. श्री औरबिंदो के अनुसार पाठ्यक्रम बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने के लिए स्वतंत्र वातावरण का समर्थन होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों के अनुसार उन सभी विषयों को सम्मिलित करने का सुझाव प्रस्तुत किया जिनमें शैक्षिक अभिव्यक्ति तथा क्रियाशीलता के गुण विद्यमान हो।
वास्तविकता यह है कि श्री अरविंद प्रत्येक विषय में जीवन का नया संचार करके उसको एक नया रूप देते हुए इतना विकसित कर देना चाहते थे कि उसके द्वारा श्रेष्ठ मानवता का विकास हो सके। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला सिद्धांत, पाठ्यक्रम रोचक हो। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों पर स्थान दिया जाए जिसमें बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास हो सके। पाठ्यक्रम के विषयों में बालक को आकर्षित करने की शक्ति हो। पाठ्यक्रम के विषयों में जीवन की क्रियाशीलता के गुण होने चाहिए। पाठ्यक्रम को विश्व ज्ञान में बालक की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर श्री अरविंद ने बालक के पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया। प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्टेज पर मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, साहित्य, राष्ट्रीय इतिहास, चित्रकला, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा गणित। माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी स्टेज में मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, कला, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा सामाजिक विषय। विश्वविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्टेज पर भारत तथा पाश्चात्य दर्शन, सभ्यता का इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान का इतिहास, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, विश्व एकीकरण तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, चित्रकारी, फोटोग्राफी, सिलाई, सूची शिल्प कार्य, शिल्प कला संबंधी, ड्राइंग, टंकन, आशुलिपि जिसे शॉर्ट हैंड कहते हैं, कुटीर उद्योग, काष्ठ कला, सामान्य मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उपचारण, नर्सिंग, भारतीय तथा यूरोपीय संगीत, अभिनय तथा नृत्य। शिक्षा पद्धति की बात अरविंद करते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग। तो अरविंद के अनुसार शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। अरविंद के अनुसार शिक्षा पद्धति बालक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चाइल्ड। श्री अरविंद ने बालक के सामने स्वतंत्रता का वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा कहा, जिससे वह अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। उनका विश्वास था कि अनियंत्रित वातावरण में विकास कुंठित हो जाता है। नेक्स्ट, बालक के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति, लव एंड सिंपैथी फॉर द चाइल्ड। श्री अरविंद के अनुसार बालक के साथ प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, इससे वह स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। नेक्स्ट, मातृभाषा द्वारा शिक्षा, एजुकेशन थ्रू मदर टंग। श्री अरविंद ने इस बात पर बल दिया कि बालक को शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से मिलनी चाहिए, इससे वह कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट, शिक्षा बालक की रुचि के अनुसार, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। श्री अरविंद के अनुसार
शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की रुचियों का अध्ययन करे तथा उसके अनुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था करे। ऐसा करने से बालक की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती रहेगी, अन्यथा वह पढ़ना छोड़ देगा। अगला, स्व प्रयत्न तथा स्व अनुभव द्वारा शिक्षा, एजुकेशन थ्रू सेल्फ एफर्ट एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। श्री अरविंद ने बताया कि बालक को स्व प्रयत्न तथा स्व अनुभव द्वारा सीखने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाए। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान बालक के व्यक्तित्व का स्थायी अंग बन जाता है। ऐसी शिक्षा वास्तविक तथा लाभप्रद होती है। करके सीखने पर बल, एम्फेसाइज ऑन लर्निंग बाय डूइंग। श्री अरविंद ने बालक की क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा बताया कि बालक को स्वयं करके सीखने के अवसर मिलने चाहिए। इसीलिए उन्होंने शिशु कक्षा में मॉन्टेसरी प्रणाली तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में चित्रकला को महत्वपूर्ण स्थान दिए। अगला, परस्पर सहयोग द्वारा शिक्षा, एजुकेशन थ्रू कोऑपरेशन। उनका विश्वास था कि पढ़ने तथा सीखने का कार्य परस्पर सहयोग के द्वारा ही सफल हो सकता है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक बालक का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करे। अगला, शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुसार, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चाइल्ड। श्री अरविंद के अनुसार प्रत्येक बालक में कुछ ईश्वरीय देन होती है तथा कुछ उसकी प्रतिभा भी। उसकी आत्मा को सर्वोत्तम रूप से विकसित करने के लिए उसे उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग, Sri Aurobindo Ghosh laid stress upon the following principle of method of teaching. First, freedom of child. Second, love and sympathy for the child. Third, education through mother tongue. Fourth, education according to interest of the child. Fifth, education through self-experience. Sixth, education on learning by doing. Seventh, education through cooperation. And last but not the least, education according to the nature of child. Thus, the most significant contribution made by Sri Aurobindo to the world of education is his integral approach. An integral education inspires the children to develop the 5 essential aspects of personality, such as the physical, the vital, the mental, the psychic, and the spiritual. Integral education is conceived as a process of organic growth and the way in which the various faculties could be developed and integrated. It is dependent upon each child's inclination, rhythm of progress, and law of development, swabhav, inherent disposition, and swadharma, inner nature. The idea is to provide facilities for varieties of faculties, varieties of subjects, and various combinations of pursuit of knowledge, power, harmony, and skill involved. These faculties are so provided that they could be
made use of by each student and the teacher, so that a natural process of harmonious development could be encouraged. Sri Aurobindo Ghosh was deadly against the prevalent education of his time. He had admitted that after the attainment of independence, changes had occurred in our system of education, but it is not in conformity with the mental and spiritual need of children and demands of the nation. श्री अरविंद के अनुसार बालक का स्थान कैसा होना चाहिए? श्री अरविंद के अनुसार प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत क्षमताएं तथा विलक्षणताएं होती है। इस ईश्वरीय देन को पूर्ण रूपेण विकसित करना ही उसकी सच्ची शिक्षा है। उनका विश्वास था कि बालक के विशेष गुणों, योग्यताओं, विचारों तथा धर्म को किसी पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार बलपूर्वक विकसित करना उसके विकास को कुंठित करना है, जो उसके साथ घोर अन्याय है। अतः उन्होंने बताया कि शिक्षा की व्यवस्था बालक की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसकी जिज्ञासा तथा रुचियों के अनुसार की जानी चाहिए, जिससे बालक उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो जाए। इस संबंध में श्री अरविंद ने स्वयं लिखा है कि बालक को माता पिता अथवा शिक्षक की इच्छानुकूल धारणा, अंधविश्वास तथा जंगलीपन, माता पिता इससे बड़ी भूल और कोई नहीं कर सकते कि वे पहले से ही इस बात की व्यवस्था करें कि उनके पुत्र में विशिष्ट गुणों, क्षमताओं तथा विचारों का विकास होगा। प्रकृति को स्वयं अपने धर्म का त्याग करने के लिए बाध्य करना उसे स्थायी हानि पहुंचाना है, उसके विकास को विकृत करना है तथा उसकी पूर्णता को दूषित करना है। The idea of human being of child into shape desired by the parent or teacher is a barbarous and ignorant suppression. There can be no great error than for the present to arrange beforehand that his son shall develop particular qualities and capacities. To force the nature to abandon its own dharma is to do it permanent harm, mutilate its growth and deface its perfection. श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए? प्लेस ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो। शिक्षक के स्थान के संबंध में श्री अरविंदो ने स्वयं ही लिखा है, शिक्षक निर्देशक अथवा स्वामी नहीं है, अपितु वह केवल सहायक तथा पथ प्रदर्शक है। उसका कार्य सुझाव देना है, न कि ज्ञान को थोपना। वह बालक के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करता, अपितु वह उसे सीखने की प्रक्रिया में सहायता तथा प्रेरणा देकर यह बताता है कि वह अपने ज्ञान के साधनों को किस प्रकार समृद्ध बना सकता है। वह छात्र को ज्ञान नहीं देता, अपितु वह उसे यह बताता है कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता। वह बालक के अंतर्निहित ज्ञान को बाहर नहीं निकालता, अपितु वह उसे केवल यह बताता है कि ज्ञान कहाँ है तथा उसको बाहर लाने के लिए किस प्रकार आदत डाली जा सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर, स्कूल एंड डिसिप्लिन।
Child occupies central position in the process of education. Every child has the potential abilities which the teacher need to identify and develop. Teacher should not impose his or her own thoughts upon the learners, rather help and guide them for developing to a fullest human being. According to him, teacher is a facilitator and guide. School environment should be helpful in physical and spiritual development of child. Children should not be discriminated on the basis of religion, caste, religion, color, creed, etc. School environment should be full of cooperation, love, and harmony. Aurobindo strongly opposed corporal punishment and considered it inhuman. He was a strong supporter of controlling the child by their own and not by any other outer sources. He believed that self-control can be developed by practicing yoga and brahmacharya. अब श्री औरबिंदो के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन, एन एस्टीमेट ऑफ ऑरबिंदो एजुकेशनल फिलॉसफी। श्री अरविंद ने प्रकृतिवादियों तथा प्रयोजनवादियों की भांति बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने शिक्षक को केवल निर्देशक, सहायक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में ही स्वीकार किया तथा उन शिक्षण सिद्धांतों का निर्माण किया जिसके अनुसार बालक को उसकी मातृभाषा के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता के वातावरण में उनकी अभिरुचियों का अध्ययन करके प्रेम तथा सहानुभूति पूर्वक उसकी प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक विकास के अवसर मिलते रहे। पर ध्यान देने की बात है कि उनकी शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवादी दर्शन पर ही आधारित रहे। वस्तुस्थिति यह है कि श्री अरविंद विशुद्ध आदर्शवादी थे। उनका शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक आस्था, ब्रह्मचर्य तथा योग पर आधारित होते हुए आध्यात्मिक प्रगति का परिचायक है। यद्यपि श्री अरविंद पर पाश्चात्य दर्शन का पर्याप्त प्रभाव रहा, फिर भी उनकी महानता इस बात में है कि वे मूलतः भारतीय ही रहे। उन्होंने पाश्चात्य दर्शन की अच्छाइयों को लेकर भारतीयता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। संक्षेप में उनका दर्शन भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। श्री अरविंद ने अनुभव किया कि भारतीयों का दृष्टिकोण शनै शनै भौतिकवादी होता जा रहा है, जिससे उसके अंदर की दिव्य ज्योति बुझती जा रही है। अतः उन्होंने प्रचलित भौतिक शिक्षा की बड़ी आलोचना करते हुए बताया कि यह शिक्षा विदेशी है, इससे भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का पोषण संभव नहीं है। भारत को तो ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो भारतीयों के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्ति का निर्माण अथवा जीवित उत्कर्ष कर सके। इस दृष्टि से श्री अरविंद ने पौंडीचेरी में अरविंद आश्रम खोला, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नए सिद्धांतों पर आधारित करके शिक्षा को ऐसा नया रूप देकर भारतीय जनता के सामने रखा जो बालक के भावानुकूल हो तथा जो ब्रह्मचर्य द्वारा तप, तेज एवं विद्युत की वृद्धि से बालकों के मन, शरीर
तथा हृदय और आत्मा को सशक्त बना सके। डॉक्टर आर.एस. मणि ने ठीक ही लिखा है, अरविंद का शिक्षा दर्शन मनुष्य की समस्त शक्तियों के उत्कर्ष तथा अधिक से अधिक पूर्ण विकास के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके विचार यह सिद्ध करते हैं कि श्री अरविंद हमारे देश के प्रमुख तथा प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों में से थे। Aurobindo's philosophy of education is based on the principle of evocation of potentialities of the individual in all its eternity and full of development of as many-sided as possible. His views on education reveal that Sri Aurobindo was one of the most eminent and distinguished educationists of our country. अब संक्षेप में श्री औरबिंदो के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले श्री औरबिंदो का जीवन दर्शन। श्री औरबिंदो आदर्शवादी थे। उपनिषद का मौलिक सिद्धांत उनके दर्शन का आधार था। वे विकास के सिद्धांत में विश्वास करते थे। श्री औरबिंदो का शिक्षा दर्शन अंतःकरण शिक्षा का मुख्य उपकरण है। इसके 4 स्तर है, चित्त, मानस, बुद्धि तथा ज्ञान। शिक्षा उक्त चारों स्तरों का पूर्ण विकास करे। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या है? स्वामी औरबिंदो के अनुसार शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत बालक प्रधान शिक्षा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां, सुषुप्त शक्तियों का विकास, शारीरिक वृद्धि, चेतना का विकास, अंतःकरण का विकास, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, ऐच्छिक विषय, शिक्षा में धार्मिक गुण, ब्रह्मचर्य तथा बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक विकास। श्री औरबिंदो के अनुसार शिक्षा की धारणा, शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। श्री औरबिंदो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक विकास और शुद्धि, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, तार्किक शक्ति का प्रशिक्षण, नैतिकता का विकास, अंतःकरण का विकास तथा आध्यात्मिक विकास। श्री औरबिंदो के अनुसार पाठ्यक्रम बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास संबंधी विषय पाठ्यक्रम में होना चाहिए। श्री औरबिंदो के अनुसार शिक्षण प्रणालियां समकालीन होनी चाहिए तथा क्रमिक होनी चाहिए। श्री औरबिंदो के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण, स्वतंत्रता होनी चाहिए, रुचि का सिद्धांत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, स्व प्रयत्न तथा स्व अनुभव। बालक का स्थान श्री औरबिंदो के अनुसार कैसा होना चाहिए? बालक का स्थान शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए? शिक्षक का स्थान औरबिंदो के अनुसार निर्देशक, सहायक तथा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो विशुद्ध आदर्शवादी, उनका दर्शन था आध्यात्मिक और आस्था, ब्रह्मचर्य, योग पर आधारित होते हुए आध्यात्मिक प्रगति का परिचय। इस प्रकार श्री औरबिंदो एक आदर्शवादी थे और आदर्शवाद पर ही उन्होंने बल दिया। उन्होंने चित्त, मानस, बुद्धि तथा ज्ञान के संदर्भ में बात की और उन्होंने कहा
शिक्षा को चाहिए कि उक्त चारों स्तरों का विकास करे। धन्यवाद। थैंक यू।